Hello everyone. We are doing chapter 8, Human Health and Diseases. This is the second video of the chapter, class 12th, Biology. In this video, we are going to cover the topics immunity and human immune system. Let us start with immunity. What is immunity? It is the ability of body to fight with disease germs. If any disease germs enter in our body, we start fighting with it. And this ability of the body to fight with the germs is called as immunity. There are two types of immunity in our body. Innate immunity means inborn, and acquired immunity which we get in the lifetime. Innate is by birth. Let us see them one by one. Innate immunity. The first point about the innate immunity is they are non-specific defense mechanism. They are not specific to any disease germs. And second, they are present at the time of birth. And third, they are in the form of barriers. So, three important things about the innate immunity. What are the different types of barriers which are present in our body at the time of birth to protect us from the diseases? First, physical barriers. Second, physiological barriers. Third, cellular barriers. And fourth, cytokine barriers. Physical barriers. Skin and mucous membranes, they are the physical barriers. What they do? Skin prevent entry of foreign bodies. हमारी body के अंदर foreign bodies को enter ही नहीं होने देती skin. And mucous coating क्या करती है? Where it is present mucous coating? It is present in the lining of respiratory, gastrointestinal and urinogenital tract and trap the microbes. This mucous coating, they trap the microbes, catch the microbes. So, these are the physical barriers which are present in our body. Second, physiological barriers. What they do? They prevent microbial growth. ये microbes की growth नहीं होने देते. क्या क्या चीज़ included है इसके अंदर? Gastric hydrochloric acid, saliva and tears. Gastric hydrochloric acid is produced in the stomach and it prevents the microbial growth. Microbes की growth को होने से रोकता है in the stomach. Saliva, it prevents the microbial growth in the mouth. And tears, they prevent the microbial growth in the eyes. Very important, the tears are very important. So, these are the physiological barriers which are present in our body. Third, cellular barriers means some cells are there in the body which protect us from the germs. What are they? They are the phagocytes like WBC, white blood cells in the blood. See the diagram? Neutrophils, or you can say them polymorphonuclear leukocytes. PMNL. Second, monocytes, and third, natural killer lymphocytes. They are all phagocytes, and also the macrophages which are present in the tissues. They are the cellular barriers. They are the cells which protect us from the disease germs. Fourth, cytokine barriers. What are they? When virus infect our cells, then the cells secrete a cytokine protein called interferon. जब भी कोई वायरस इन्फेक्ट करता है हमारे बॉडी में तो सेल्स हमारी बॉडी के साइटोकाइन प्रोटीन बनाते हैं जिसको इंटरफेरॉन कहते हैं और ये इंटरफेरॉन दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट होने से रोकता है. ओके, नाउ कम टू द एक्वायर्ड इम्यूनिटी. The most important is they are pathogen specific, and second, they develop during the lifetime.
हमारी पूरी लाइफ में ये डेवलप होती है धीरे धीरे। एंड थर्ड, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मेमोरी, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मेमोरी मीन्स याद, वी रिमेंबर द थिंग्स। ड्यूरिंग फर्स्ट एनकाउंटर व्हाट हैपन, अगर कोई पैथोजन फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी में एंटर करा है तो क्या होता है, हमारी बॉडी जो है, बॉडी प्रोड्यूसेस प्राइमरी रिस्पॉन्स इन लो इंटेंसिटी, बहुत लो इंटेंसिटी में एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है अगेंस्ट द पैथोजन। और इफ द सेकेंड एनकाउंटर takes place of the same pathogen, then there is a secondary response in the body, and this is the high intensity response, and it is also called as anamnestic response. Now it means the second time हमें पता है कि what type of organism is this and how we have to fight with this. We immediately start fighting with it. क्या होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स में? प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरीड आउट बाय बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज के लिए। बी लिम्फोसाइट्स व्हाट दे डू, दे प्रोड्यूस आर्मी ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एंटीबॉडीज। यहाँ राइट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ है वो देखिए, बी लिम्फोसाइट्स प्लस एंटीजन, एंटीजन इज एनी फॉरेन बॉडी, जब दोनों मिल जाते हैं तो दे प्रोड्यूस द आर्मी ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एंटीबॉडीज। और टी lymphocyte what they do, they help the B lymphocyte to produce antibodies. So in this way primary and secondary immune response takes place in our body with the help of B lymphocytes and the T lymphocytes. Now let us see the structure of antibody. What are they made up of? An antibody has 4 polypeptide chains. See the diagram. There are 4 chains. 2 light chains हैं and 2 heavy chains हैं. H2L2. It is written like H2L2. See the diagram. Yellow and brownish color का जो है, they are the light chains, and blue and orange color का जो है, that is the heavy chain. So there are 2 heavy chains and 2 light chains in antibodies. Polypeptide की chains होती हैं ये. And different types of antibodies which are present are IgA, IgG, IgM, IgE and IgD. These are the different types of antibodies which are present in our body. We are talking about the acquired immune responses. Let us see what are the 2 types of acquired immune responses. One is AMI, second is CMI. AMI is antibody mediated immunity. Second is cell mediated response or cell mediated immunity. What are these 2 now? Let us see. AMI. What happens? See the right side. Antibodies are present in the blood and they do not allow virus to infect the cells, to attack the cells. एंटीबॉडीज, अगर हमारी बॉडी में कोई वायरस एंटर कर गया है तो ये एंटीबॉडीज अलाउ नहीं करती इन वायरसेस को ताकि हमारे वो सेल्स को इन्फेक्ट करे। एंड एज द एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द ब्लड, सो द रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स और एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पॉन्स, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज इन्वॉल्व हैं। सेकेंड रिस्पॉन्स इज CMI, सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स। वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें कोई सेल्स इन्वॉल्व हैं। कौन से सेल्स हैं जो इसमें इम्यूनिटी में इन्वॉल्व हैं? टी लिम्फोसाइट्स। व्हाट हैपन्स इफ देयर इज एनी ट्रांसप्लांटेशन टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी? सपोज हमारी बॉडी में कोई हार्ट ट्रांसप्लांट होना है, आई ट्रांसप्लांट होना है, लिवर ट्रांसप्लांट हो जाए या किडनी ट्रांसप्लांट हो जाए, तो व्हाट हैपन? जो ये टी सेल्स हैं दे कैन डिफ्रेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। अपना कौन सा है और अपना कौन सा नहीं है उनको पहचान सकते हैं ये टी सेल्स, और ये टी सेल्स रिजेक्ट कर देते हैं ट्रांसप्लांट को। जो हमने हार्ट लिया है ट्रांसप्लांट करके उसको भी रिजेक्ट कर सकते हैं, लिवर को रिजेक्ट कर सकते हैं, किडनी को रिजेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज दे कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सेल्फ एंड द नॉन सेल्फ।
That's why this type of immunity response is called as cell mediated response, because in this T lymphocytes are involved. CMI is responsible for graft rejection. तो ट्रांसप्लांटेशन के दौरान क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या किया जाता है रादर बिफोर ट्रांसप्लांटेशन? 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डू टिश्यू मैचिंग, एसेंशियल है बहुत ये. सेकंड, ब्लड ग्रुप मैचिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और आफ्टर ट्रांसप्लांट, जब ट्रांसप्लांट हो गया है, सब कुछ मैच भी कर लिया, बट आफ्टर दैट ऑल्सो इम्यूनोसप्रेसेंस आर गिवन टू द पर्सन, टू द पेशेंट थ्रू आउट लाइफ. पूरी लाइफ उनको ये मेडिसिन खाना पड़ता है. ये मेडिसिन क्या करती है, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को लो रखती है, ताकि हमारे पास जो ग्राफ्ट आया है, जो ट्रांसप्लांट आया है, हम उससे फाइट ना करें. ओके, सो वी हैव टू टेक केयर during the time of transplantation. Now let us see what is active and passive immunity. Active immunity and passive immunity दोनों natural भी हो सकती हैं, artificial भी हो सकती हैं. Let us see them one by one. What is active immunity? जैसे नाम है active, यानी हमारी बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी in the formation of antibodies. It is the immunity in which antibodies are produced in the host. राइट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ है वो पढ़िए अच्छे से. होस्ट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज व्हेन एक्सपोज्ड टू एंटीजेंस. इसका मतलब है हमारी बॉडी जो है एक्टिवली एंटीबॉडीज बना रही है, अपने आप अपनी एंटीबॉडीज बना रही है. दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव इम्यूनिटी, बट इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस. बट इट कैन बी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. नेचुरल में क्या है, हमारी बॉडी में कोई नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है माइक्रोब से और हमने उसके अगेंस्ट आर्मी तैयार कर लिया, एंटीबॉडी तैयार कर लिया. जैसे कि आजकल कोरोना वायरस जिसकी बॉडी में एंटर कर गया है, उसने अपनी बॉडी में एंटीबॉडी बना लिया है. तो ये नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी उसके अंदर आ गया है. आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होगा, इसमें हम कुछ माइक्रोब्स को इंजेक्ट कर देंगे बॉडी के अंदर, डाइल्यूट फॉर्म में, वीक फॉर्म में. वीक माइक्रोब्स आर एंटर्ड इनटू द बॉडी थ्रू इंजेक्शंस. अब ये जब वीक माइक्रोब्स एंटर कर गए तो अब हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी और आर्मी तैयार कर लेगी. सो वी आर हैविंग नाउ द इम्यूनिटी अगेंस्ट द वायरस, अगेंस्ट द बैक्टीरिया, अगेंस्ट द डिजीज. So this is called as active immunity, in which the body is actively participated in the formation of antibodies. Passive immunity, in this we get the ready-made antibodies. तैयार एंटीबॉडीज हैं हमारे पास बाहर और हम उसको ले रहे हैं. ये भी नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है. नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में कौन सी एंटीबॉडीज बॉडी में जाती हैं? एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर, IgG. इट गोज टू द फीटस, ग्रोइंग बेबी के अंदर चला जाता है थ्रू प्लेसेंटा. तो जो मदर के अंदर एंटीबॉडीज हैं वो फीटस में जा सकती हैं थ्रू प्लेसेंटा. सो दिस इज द नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी. उस फीटस को इम्यूनिटी मिल रही है, बनी बनाई एंटीबॉडी मिल रही हैं. और कहाँ से बनी बनाई एंटीबॉडीज मिल सकती हैं चाइल्ड को? कोलेस्ट्रॉम. दिस इज द फर्स्ट ब्लड, this is the first milk which the child gets from the mother, and it contains the antibody IgA. Okay, so this is again the ready-made antibody the child is getting from the mother. This is the passive immunity, natural है ये. बट आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में क्या है, कोई डिजीज है जैसे कि टिटनस, उसके अगेंस्ट हम पैसिवली हम बनी बनाई एंटीबॉडीज अपनी बॉडी में डाल देते हैं. This is the passive immunity. Vaccination and immunization. It is the same thing again. Active immunization and passive immunization. This is based on memory of the immune system. Active immunization, again the same. Inactivated pathogens are introduced into the body. हमारी बॉडी में inactivated pathogens को डाल दिया जाता है पर्टिकुलर डिजीज के.
फॉर एग्जाम्पल पोलियो की ड्रॉप्स जब हम किसी भी बच्चे को देते हैं तो उस ड्रॉप में इनएक्टिवेटेड पोलियो के जर्म्स होते हैं, और जब ये बॉडी में चले जाते हैं तो बॉडी उससे रिएक्ट करती है, रिस्पॉन्ड करती है और एंटीबॉडी बना देती है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन. The vaccines also generate memory B and T cells. एक्टिव इम्यूनाइजेशन में जो वैक्सीन्स हैं वो मेमोरी बी एंड टी सेल्स बनाती हैं और वो पैथोजन को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं. एग्जाम्पल एक्टिव इम्यूनाइजेशन के कौन से हैं? पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन्स. पैसिव इम्यूनिटी. In this, already pre-formed antibodies are given or antitoxins are given and it is required for the quick immune response. इमीडिएटली हमारे पास कोई जर्म्स आ गए हैं और हम उनको मारना चाहते हैं, तो जब कोई बच्चे को चोट लग जाती है, रोड पर वो गिर जाता है, तो टिटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है, क्योंकि टिटनस के इंजेक्शन में एंटीबॉडीज़ रेडीमेड तैयार हैं और इमीडिएटली दे दिया जाता है वो किसी भी पर्सन को, और वो क्विक रिस्पॉन्स है. Pre-formed antibodies are given in the passive immunization. Now come to the allergy. What are allergies? First come to the definition of allergy. It is the exaggerated response of immune system to some antigen seen in environment. Environment में कुछ ऐसे एंटीजन्स होते हैं जिसके अगेंस्ट हम लोग फाइट करते हैं. नॉर्मल पर्सन को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्ड करते हैं इन एंटीजन्स के अगेंस्ट, एंड दीज एंटीजन्स आर कॉल्ड एज एलर्जेंट्स, जैसे कि डस्ट, पॉलन ग्रेन्स, एनिमल डैंडर, फर. जब ये एलर्जेंस बॉडी में पहुंच जाते हैं तो हमारी बॉडी क्या बनाती है? एंटीबॉडीज टू फाइट विद द एलर्जेंस. और कौन सी एंटीबॉडी बनाती है? IgE. और जब ये एंटीबॉडीज बनती हैं, दीज एंटीबॉडीज IgE बाइंड्स विद द मास्ट सेल्स. सी द डायग्राम. एलर्जन पहुंच गया है, पिंक कलर का एलर्जन है, उसने IgE बन गया. IgE अटैक द मास्ट सेल्स. अब नाउ दीज मास्ट सेल्स दे प्रोड्यूस द केमिकल कॉल्ड हिस्टामीन. और जब ये केमिकल रिलीज होता है तो जहाँ पर भी वो रिलीज होगा वहाँ रेडनेस हो जाएगा, एलर्जी हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा. सो दिस इज द एलर्जिक रिएक्शन. सिम्टम्स क्या है एलर्जी के? स्नीजिंग, वाटरी आई, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, वीजिंग और स्किन रैशेस. कैसे पहचाने एलर्जी को? इसके लिए पेशेंट्स को क्या दिया जाता है? पेशेंट को एक्सपोज किया जाता है बाय इंजेक्टिंग स्मॉल डोज ऑफ पॉसिबल एलर्जेंस. थोड़ी थोड़ी डोज में डिफरेंट एलर्जेंस देकर चेक किया जाता है और उसको रिस्पॉन्ड को स्टडी किया जाता है कि क्या वो पर्सन किस चीज़ से एलर्जी है उसको. बट इट इज़ अ वेरी लॉन्ग एंड वेरी ट्रबलसम प्रोसेस, नॉट सो ईजी. ट्रीटमेंट क्या दिया जाए एलर्जिक पर्सनस को? ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन एंड स्टीरॉइड्स आर गिवन, ताकि क्विक रिस्पॉन्स आ जाए. एग्जाम्पल क्या है? बीमारी कौन सी है? एस्थमा इज एन एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जी डिजीज. और आजकल की डेट में मॉडर्न लाइफस्टाइल में एस्थमा बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि जो सभी पर्सन्स बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं इन द अर्ली लाइफ. दैट्स वाई वी सी द एस्थमा मोर नाउ इन these days. What is autoimmunity? Next important point, autoimmunity. ये तुमको बताया है कि बॉडी अपने आप को पहचानती है और बाहर से आने वाली चीज़ को भी पहचानती है. सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में डिफ्रेंशिएट कर सकती है. ओके, बट समटाइम्स बॉडी स्टार्ट अटैकिंग सेल्फ. अपने आप को ही अटैक करना शुरू कर देते हैं. हमारा इम्यून सिस्टम हमारी अपनी बॉडी को ही ऑर्गन्स को अटैक करना स्टार्ट कर देता है ड्यू टू अननोन रीजन भी नहीं पता, मे बी जेनेटिक, रिजल्टिंग इन द डैमेज ऑफ द बॉडी. और हमारी बॉडी को डैमेज हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटो इम्यून डिजीज. एग्जाम्पल है इसका रूमेटॉइड आर्थराइटिस. देख रहे हो हैंड्स कितनी बुरी तरह से मुड़ गए हैं इस पर्सन के रूमेटॉइड आर्थराइटिस में.
Now come to the human system. Human immune system consists of lymphoid organs, tissues, cells and antibodies. And immune system recognizes, respond and remember foreign antigen. 3 R हैं. इम्यून सिस्टम हमारा रिकॉग्नाइज करता है, उसको रिस्पॉन्ड करता है और रिमेंबर भी करता है फॉरेन एंटीजन को. ओके, सो लेट अस स्टडी देम वन बाय वन. डिफरेंट लिम्फॉइड ऑर्गन्स. Lymphoid organs are 2 types, primary lymphoid organs and secondary lymphoid organs. These are the organs where origin, maturation and proliferation of lymphocyte takes place. जहाँ पर lymphocytes बनते हैं, mature होते हैं, proliferate होते हैं. They are called as lymphoid organs. Primary lymphoid organs. Example हैं bone marrow and thymus. The organs where lymphocytes are matured and differentiated to antigen sensitive lymphocytes. ऐसे lymphocyte बना देता है जो antigen sensitive हैं. Example bone marrow and thymus. Bone marrow. What happens in the bone marrow? Bone marrow वो जगह है जहाँ पर blood cells बनते हैं. B cells भी बनते हैं, T cells भी बनते हैं, red blood cells भी बनते हैं. Bone marrow. Thymus क्या है? Where it is located? Thymus is a bilobed organ seen near the heart and beneath the breastbone. और जब at the time of birth इसका साइज बहुत बड़ा होता है और प्यूबर्टी तक आते आते इसका साइज छोटा होने लगता है. What happened in this? Immature T lymphocyte जो बने थे बोन मैरो में वो माइग्रेट कर जाते हैं थाइमस में और वहां पर मैच्योर हो जाते हैं. Okay. Secondary lymphocytes, secondary lymphoid organs. Example है spleen and lymph nodes और भी आगे भी examples हैं. The organs to which matured lymphocytes migrate from primary lymphoid organs interact with antigen and then proliferate to become effector cells. ये वो organs हैं जहाँ पर मैच्योर्ड लिम्फोसाइट माइग्रेट हो जाते हैं फ्रॉम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स. वहाँ पर इंटरैक्ट करते हैं एंटीजन से और प्रोलिफरेट करते हैं और इफेक्टर सेल्स बन जाते हैं. एग्जाम्पल स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पियर्स पैचेस, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज एंड अपेंडिक्स. Spleen, it is a bean-shaped organ and it contains lymphocytes and phagocytes. और बेसिकली ये फिल्टर है. ये इट एक्ट्स एज अ फिल्टर ऑफ ब्लड को फिल्टर कर देता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेता है और ट्रैप करके जो इसमें लिम्फोसाइट्स हैं और फैगोसाइट्स हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है. स्प्लीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गेन. लिम्फ नोड्स, डायग्राम देखिए. लिम्फ नोड्स आपके सामने बनी हुई हैं. लिम्फ नोड्स आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग लिम्फेटिक सिस्टम. हमारी बॉडी में 3 सिस्टम्स हैं, आर्टीरियल सिस्टम, वीनस सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम में कहीं कहीं पर कुछ सॉलिड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. दे आर कॉल्ड एज लिम्फ नोड्स. And what they do? They again trap the microorganism and other antigens. ये ट्रैप कर लेते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म को और एंटीजन्स को और इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं और लिम्फोसाइट्स होने के कारण वो एंटीजन्स को किल कर देते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म को खत्म कर देते हैं. माल्ट म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू. ये बता दिया है कहाँ लोकेटेड होते हैं. दे आर प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट एंड 50% लिम्फॉइड टिश्यूज यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. सो आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द टॉपिक. यू मस्ट हैव एंजॉयड द टॉपिक. डू द टेस्ट गिवन इन द बॉक्स. MCQs फॉर्म में आपके लिए टेस्ट है, आप उसको करिए, चेक करिए आपने कितना अंडरस्टैंड किया.
Thank you for staying with me. Subscribe the channel to get information